ایک قوم جو ظلم کے نیچے پسی جا رہی تھی۔ ان پہ رومن حکمرانوں کے کوڑے برس رہے تھے۔ ان کے شہروں پر غیروں کا قانون تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے تھے، اے اللہ ہمیں بچا لے، ہمارے لیے کوئی رہنما بھیج دے۔ اور جب اللہ نے ان کی فریاد سنی تو آسمان سے ان کی مدد کے لیے ایک نبی بھیجے گئے، عیسیٰ ابن مریم، وہ نبی جو ان کے لیے شفا بنے، جو ان کے لیے امید بنے، جو ان کے لیے زندہ معجزہ بن کر آئے۔ مگر تاریخ کا سب سے دردناک دھوکہ یہیں سے شروع ہوا۔ جس نبی کو ان کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا، اسی نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا، اور جو ہونے والا تھا وہ صرف ایک قتل نہیں تھا، وہ تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ تو سوال یہ ہے، جس نبی کو قتل کرنے آئے تھے وہ گئے کہاں؟ اور سولی پر لاتک کر تڑپنے والا اصل میں کون تھا؟ بیت المقدس، یروشلم، وہی شہر جہاں انبیاء کی صدائیں گونجتی تھیں، جہاں سجدوں کی خوشبو تھی، اور جہاں اب رومن جھنڈے لہرا رہے تھے۔ شہر بنی اسرائیل کا تھا، لیکن حکم رومن تمہیں روم امپائر کی کا غلامی چلتا تھا۔ قبول کرنی ہوگی، یہ فیصلہ حتمی ہے۔ گلیوں میں رومن سپاہی تھے۔ ظلم عام تھا، انصاف مہنگا تھا، اور حق بولنا جرم۔ رومن قانون کے نیچے بنی اسرائیل صرف سانس لے رہے تھے، جینا ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسی اندھیرے دور میں اللہ نے اپنی رحمت کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، قرآن کہتا ہے، وہ نبی بھی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بھی۔ ایک دن زکریا علیہ السلام محراب میں گئے تو دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس ایسا رزق تھا جو اس شہر کی زمین پر مل ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ مریم علیہ السلام نے کہا، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہیں سے زکریا علیہ السلام کا یقین اور گہرا ہو گیا۔ انہوں نے یہ واقعہ اپنی بیوی کو بتایا اور پھر دعا مانگی، اور اللہ نے بڑھاپے میں انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ قرآن کہتا ہے، یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی حکمت اور تقوی کا نشان تھے۔ اور دوسری طرف اللہ نے وہ کر دکھایا جو عقل سے باہر تھا۔ ایک دن مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور کہا، میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو دور رہے۔ جواب آیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تجھے ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں؟ جواب صرف اتنا تھا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قدیر ہے۔ مریم سمجھ چکی تھی، یہ صرف بشارت نہیں، یہ امتحان ہے۔ اور بیت المقدس کو ابھی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جلد عیسیٰ ابن مریم پیدا ہونے والے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگ بول اٹھے، یہ کیسا جرم ہے؟ مگر اللہ نے گود میں موجود بچے سے جواب دلوا دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا۔ یہ صرف جواب نہیں تھا، یہ بیت المقدس کے لیے تنبیہ تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی، اپنے پڑوسی سے ویسے ہی پیار کرو جیسے تم خود سے کرتے ہو۔ وہ شہر شہر گئے، گاؤں گاؤں گئے، لوگوں کو حق کے راستے پر بلایا۔ اللہ ایک ہے اور تم سب اس کے بندے ہو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ ان کے ساتھ کچھ سچے ساتھی بھی تھے جو دولت کے لیے نہیں، حق کے لیے چلے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب معجزے دکھائے، مٹی سے پرندے بنا کر انہیں زندہ کیا، اندھے دیکھنے لگے، مردے زندہ ہوئے، تو عام لوگ حق کی طرف جھکنے لگے۔ اب شکار ملنا تو ناممکن ہو چکا تھا۔ رومن سپاہیوں کو اگر ایک بار بھی پیسے نہ دیے جائے تو وہ تمہاری جان لے لیں گے۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب جان اٹھاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کون ہیں؟ میرے ساتھ چلو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگوں کو راحت ملی کہ اللہ نے اپنے نبی کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیج دیا ہے، اور یہیں سے سرداروں کے دل اور سخت ہو گئے۔
उन्होंने कहा, यह्या पहले ही लोगों को हमसे अलग कर रहा है और अब ये ईसा के मोजिजे लोगों को और गुमराह कर रहे हैं। हमारी रियासत खतरे में है। तफसीर इब्ने कसीर बताती है कि यहूदी सरदारों ने रोमन हुक्मरानों के पास जाकर कहा, यह्या और ईसा बगावत करवा रहे हैं और खुद को बादशाह कह रहे हैं। ये सब झूठ था, लेकिन रोमन तलवार को सिर्फ एक हुक्म चाहिए होता है। गवर्नर ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? जवाब आया, गिरफ्तार करो। तफसीर इब्ने कसीर में आता है कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम उस वक्त हुक्मरानों के जुल्म और गलत रिश्तों पर हक बोल रहे थे। इसी वजह से रोमन और यहूदी सरदारों ने उन्हें कैद कर लिया और अपने सरदारों के सामने कत्ल करवा दिया। शहर ने खामोशी इख्तियार कर ली। एक शख्स भागता हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, आपके खलाजात भाई हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि यरूशलेम में उनके खिलाफ भी साजिश हो चुकी है। एक बार फिर अल्लाह के नबी के लिए कत्ल का फैसला लिखा जा रहा था। चेहरों पर तकवा का लिबास था, लेकिन दिलों में हसद और खून। ईसा इब्न मरियम हद से आगे जा चुका है। लोग उसे नबी कहने लगे हैं। अगर ये जिंदा रहा तो हमारी अदालत, हमारी तौरत की तशरीह सब खत्म हो जाएगी। यहाँ तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये लोग हक को पहचानते थे, लेकिन उसे छुपाते थे। हम पहले भी यह्या को खामोश कर चुके हैं। खामोशी छा गई। जवाब आया, ईसा का भी अंजाम वही होगा, लेकिन हम खुद अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। सब कुछ समझ गए। एक रुब्बी ने कहा, हम रोम के सरदारों से कहेंगे कि ईसा बगावत कर रहा है। ये खुद को बादशाह कहता फिरता है। कलम उठाया गया। ईसा इब्ने मरियम कौम के लिए खतरा। उस कागज पर मोहर लगी और फैसला सुना दिया गया। अदालत में ना इंसाफ था, ना रहमत, सिर्फ डर था और कुर्सी बचाने की भूख। और कुरान की ये बात गूंजती है, वो नबियों को नाहक कत्ल करते रहे। उस रात बैतुल मुकद्दस की अदालत से सिर्फ एक बिल नहीं निकला, बल्कि एक और नबी के खून का रास्ता लिख दिया गया। और उन्हें लगता था कि इस दफा ईसा इब्ने मरियम बच नहीं पाएंगे। मगर वो ये भूल चुके थे कि जिस रब ने मरियम अलैहिस्सलाम को पाक रखा, ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और यहया अलैहिस्सलाम को शहादत के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रखा, उसी रब ने ईसा इब्ने मरियम को सिर्फ तबलीग के लिए नहीं भेजा था। खुदगर्ज लोग अपने सच्चे नबी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तफसीर इब्ने कसीर में आता है कि उस रात ईसा अलैहिस्सलाम अपने कुछ वफादार साथियों के साथ बैठे हुए थे। कमरे में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले होती है। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आज रात तुम में से एक शख्स मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। साथियों के चेहरे बदल गए। किसी ने ए कहा, अल्लाह के नबी, क्या वो हम में से ही होगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने वो निगाह उठाई और यहीं फरमाया, बैठा है। दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। तफसीर के मुताबिक वो शख्स यहूदा था, जो जाहिर में साथी था, लेकिन दिल में लालच और खौफ रखता था। यहूदा की आंखों में लर्जिश आ गई। वो खामोशी से उठा और कमरा छोड़कर निकल गया। एक लड़के ने पूछा, क्या हम उसे रोक लें? ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, जो लिखा जा चुका है वो होकर रहेगा। और उस रात गद्दारी ने अपना कदम उठा लिया। अल्लाह ने ए फरमाया, ईसा, मैं तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूँ। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने वो बात कही जो आने वाले वक्त के लिए तारीख बन गई। मेरे बाद एक नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा। ये वही बात है जो कुरान ने खुद बयान की और बाइबल में भी जिसका जिक्र मिलता है। वो आखिरी होगा, वो तुम्हें मेरी बातें भी बताएगा और जो तुम भूल गए ही उससे भी पूरा करेगा। क्या लोग उसे मानेंगे? कुछ मानेंगे, कुछ इनकार करेंगे। और साथ ही समझ गए कि ये सिर्फ एक बशारत नहीं थी, बल्कि तारीख का अगला बाब था। बाहर निकलो, आज कोई नहीं बचेगा। अचानक बाहर से चीखने और कदमों की आवाजें आने लगी। साथी घबरा गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों तुम से सब कहा, यहाँ से चले जाओ और डरना मत, क्योंकि अल्लाह मुझे इन जालिमों से बचा लेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आज तुम्हारा जादू नहीं चलेगा, दरवाजा तोड़ दो। और फिर वक्त जैसे ठहर गया। ईसा अलैहिस्सलाम के गिर्द नूर छा गया। जमीन उनसे अलग होने लगी। आसमान के दरवाजे खुल गए और ईसा इब्ने मरियम
जिंदा उठा लिए गए। यहूदी समझ ही नहीं पाए कि जिसे वो पकड़ने आए थे वो तो उनके हाथों से निकल चुका था। कुरान बिल्कुल वाज़ह तौर पर कहता है, ना उन्होंने ईसा को कत्ल किया और ना ही सूली दी, बल्कि उन पर शुबहा डाल दिया गया। तो आखिर सवाल ये है कि ईसा इब्ने मरियम की जगह वो कौन शख्स था जिसे सूली दी गई? इस शुबहा के बारे में दो मशहूर रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा देने वाले गद्दार की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी गई और वही पकड़ा गया। दूसरी रिवायत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम के एक वफादार साथी ने कुर्बानी दी, उसकी शक्ल बदल दी गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुरान किसी एक का नाम वाज़ेह नहीं करता, सिर्फ इतना बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए बल्कि जिंदा उठा लिए गए। यहूदी रहनुमा और रोमन सिपाही गुमराही में रहे और उस आदमी को जंजीरों में जकड़कर लोगों के सामने घसीटते रहे और सूली पर चढ़ा दिया। वक्त गुजरता गया और बैतुल मुक़द्दस की वो रात, वो राज सिर्फ एक लम्हा नहीं था बल्कि तारीख़ का एक बड़ा सबक बन गया। ये सबक हमें ये सिखाता है कि जब भी अल्लाह का नबी या कोई आम इंसान अल्लाह और उसके अहकाम की बात करता है तो वक्त के फ़िरौन और तक़वा का लिबास पहने मुनाफिक हमेशा उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनके दिलों में हसद और खून सवार होता है और वो अपनी गफलत और घमंड में हक के रास्ते को रोकने की कोशिश करते हैं। ये रात सिर्फ एक नबी के लिए नहीं थी, ये हर मोमिन, हर इंसान के लिए एक पैगाम है। हक का साथ देना हमेशा मुसीबत से भरा होता है, लेकिन आखिरत में अल्लाह का फैसला हमेशा इंसाफ और जीत होता है। ये वाक़या अभी ख़त्म नहीं हुआ। ईसा इब्ने मरियम वापस आएंगे जब दज्जाल का फितना उठ खड़ा होगा।